Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is flower. जो ये फ्लावर होता है, it is a modified or condensed shoot. इसके लिए ये मॉडिफाई होता है, एक शूट मॉडिफाई होता है, कंडेंस होता है, फिर मॉडिफाई होता है. इसको कोई स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करना होता है. इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स. सो फ्लावर इज modified shoot which is meant to carry out sexual reproduction in higher plants. The terminal part of the axis, the terminal part of the axis of a flower which supports the floral appendages. For example, sepals, sepals. These are sepals, petals, stamens, carpels. This is called a receptacle. Receptacle. Also, it is called thalamus or torus. So, the terminal part of the axis. This is the terminal part of the axis which supports the floral appendages. These are all floral appendages. These are supported by this terminal part. This terminal part is called receptacle or thalamus or torus. Thalamus or torus. The internodes of the branch that lies below receptacle, this that lies below this portion, the internodes that lie below this portion of the receptacle is called a pedicel. This is called a pedicel. Though this internode of the branch below this thalamus is called a pedicel. Now this is calycus, this is corolla. Calycus and corolla are accessory organs. Accessory means these are supporting organs. Whereas androecium and gynoecium, this is collective name for these male whorls is androecium and female whorl is gynoecium. The collective name. These are reproductive organs. These are accessory or supporting. Sepals, petals are supporting whorls or non-essential whorls, and stamens and carpels are reproductive or essential whorls. In some flowers, these calyx and corolla. This is calycus or sepals. This is corolla. This part. These are not distinct. These are not distinguished. Calyx and corolla are not separately distinguished, and there a special term is used that is called perianth. Perianth is used in those plants where these sepals and petals are not distinguished. Now this perianth is used for collective term for sepals and petals where it is not differentiated, where sepals and petals are not differentiated. Calycus and corolla, these are non-essential or accessory or helping whorls. Calycus and corolla, this is calycus, this is corolla, these are helping or accessory whorls. And androecium and gynoecium, this is gynoecium, this central portion, and this is androecium male part, gynoecium is female part. These are essential whorls of a flower. Now sometimes what happens in some flowers, both androecium and gynoecium occur in the same plant. For example, I have shown you this figure. Here is this is androecium, this is androecium, and this is gynoecium. These are present in the same plant. Such flowers are called bisexual flowers. Now
In some species, a flower which has only either stamen or carpel, that is called a unisexual flower. That is called a unisexual flower. Now we will discuss one by one these whorls. I have already told you the supporting portion is called thalamus. Thalamus. Below that is below thalamus is a receptacle that is called a pedicel. Pedicel is the internode below this thalamus. That is called a pedicel. This is thalamus. This supporting portion. The, Above the thalamus, these are serially located. First one is the calyx. ये आपने फ्लावर में अगर आपने रोज़ देखा होगा या कोई भी फ्लावर देखा होगा, जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है ये वाला, ये इसको बोलते हैं कैलेक्स. कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लोरल लीव्स. ये बाहर सी वर्ल होती है जो इंडिविजुअल इसमें होते हैं. इस सब का कलेक्टिव नेम है कैलेक्स. जो आप इसमें इंडिविजुअल मेंबर, फॉर एग्जांपल ये वाला होता है, इसको अलग से बोलते हैं. इस वाले को सेपल, इसको भी बोलेंगे सेपल. जो इनका कलेक्टिव नेम है उसको बोलते हैं कैलेक्स. दीज आर ग्रीन, but in some cases these are colored like petals. Generally these are green, ये green होती हैं. लेकिन कुछ स्पेशीज़ में ये पेटल जैसे रंगदार होते हैं. उस वक़्त इनको स्पेशल नेम दिया होता है पेटलाइड. उस वक़्त जब इनका रंग पेटल से मिलता है तो इनको पेटलाइड कहते हैं. दीज, अब इनका क्या फंक्शन है? दीज आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन. जब फ्लावर बड में होता है, बड कंडीशन में, तो ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं. ये है आपका ये कैलेक्स जिसको बोलते हैं, और इंडिविजुअल मेंबर्स को सेपल्स कहते हैं. अब आपने देखा इनका कलेक्टिव नेम जो है वो है कैलेकस. इंडिविजुअल मेंबर्स को सेपल्स कहते हैं. ये ग्रीन होते हैं. कभी कभी कुछ केसेस में ये पेटल्स जैसे होते हैं. उस वक़्त इनको पेटलाइड, इस फ्लावर को पेटलाइड कहते हैं. इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन. ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं बर्ड कंडीशन में. अब सीरियल 2 ये हमने कंप्लीट किया. अब ये वाले हैं जो यूजुअली कलर्ड होते हैं. किसी में डिफरेंट कलर्स होते हैं, किसी में रेड होता है, किसी में वाइट होता है. ये सेकंड वर्ल है फ्लोरल लीव्स की. ये थी फर्स्ट वर्ल जो मैंने अभी पढ़ाया. ये है सेकंड वर्ल फ्लोरल लीव्स की, जिसको हम कैरोला कहते हैं. इंडिविजुअल मेंबर्स को इसको कैलेक्स कहते, इसको बोलते हैं पेटल्स. कैलेक्स कैलेक्स इज कलेक्टिव नेम फॉर सेपल्स. इनको बोलते हैं पेटल्स. इसका नाम था कैरोला. कैरोला जो है ये सेकंड वर्ल ऑफ लीव्स है जो इनर टू कैलेक्स है. इंडिविजुअल मेंबर्स को बोलते हैं पेटल. जनरली दीज आर ब्राइट कलर्ड. इनमें ये तेज़ रंगदार होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं. दैट मीन्स उनमें स्मेल होता है. इस स्मेल का मकसद यही होता है, ये अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को फॉर पोलिनेशन. फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट्स को, इसमें जब वो फ्रेगरेंस होता है तो इंसेक्ट्स वो फ्रेगरेंस फील करके आते हैं इन पर और नेक्टर चूसने के लिए आते हैं. साथ ही वो पोलिनेशन कैरी आउट करते हैं. अब हमने ये 2 पढ़े, सेपल्स भी पढ़े, पेटल्स भी पढ़े, या इन अदर वर्ड्स कैरोला भी पढ़ा और कैलेक्स भी. कैलेक्स इज़ फर्स्ट वर्ल, कैरोला इज़ सेकंड वर्ल. पेटल्स या सेपल्स, कैलेक्स या कैरोला, इसको फ्लोरल एनवलप भी कहते हैं. फ्लोरल एनवलप. जो पेरेंट, इसका जो पेरेंट बोलते हैं, जो फ्लोरल एनवलप होता है जिसमें कैलेक्स और कैरोला का कलेक्टिव नेम है, इसको पेरेंट बोलते हैं. कैलेक्स और कैरोला का कलेक्टिव नेम. तो जो इंडिविजुअल मेंबर होता है पेरेंट का, जो इंडिविजुअल मेंबर
जो इसमें इंडिविजुअल मेंबर होता है पेरेंट का, उसको जब ये सेपल्स और पेटल्स क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं उसको टैपल कहते हैं। उस वक्त इसको टैपल कहते हैं। जब फ्लोरल एनवलप जिसमें कैलेकस और कैरोला का कलेक्टिव नेम है पेरियंथ, जब पेरियंथ में सेपल्स और पेटल्स क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं तो उस वक्त उसको टैपल कहते हैं। TEPAL, TEPAL पेरियंथ है इसका दोनों वर्ल्स का कलेक्टिव नेम कैलेक्स और कैरोला का। जब ये अलग अलग सेपल्स और पेटल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं तो इनको बोलते हैं टैपल। अब हम बढ़ेंगे एसेंशियल वर्ल्स की तरफ। ये थे सपोर्टिंग या हेल्पिंग या एक्सेसरी वर्ल्स। अब हम बढ़ेंगे जो एंड्रोशियम है या जिसको थर्ड वर्ल बोलते हैं या मेल पार्ट, इट इज़ द थर्ड एंड्रोशियम, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एंड्रोशियम, जो ये है या ये है यहाँ डायग्राम में। इट इज़ द थर्ड वर्ल ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस की ये तीसरी वर्ल है जो इस कैरोला से अंदर की तरफ एराइज होती है। पहले ये था कैलेकस, इसके बाद था कैरोला, फिर है थर्ड वर्ल जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। सीरियली अगर देखेंगे पहले था सेपल्स या कैलेकस, फिर था पेटल्स या कैरोला, फिर तीसरे नंबर पे है एंड्रोशियम। यहाँ क्लियरली ये डिफरेंशिएट है। इट इज़ अ थर्ड वर्ल, ये तीसरी वर्ल है फ्लोरल अपेंडेजेस की जो कैरोला के अंदर से एराइज होती है। इसको इंडिविजुअल मेंबर को कहते हैं स्टेमेन। जो इसको बोलेंगे हम स्टेमेन, इसको भी बोलेंगे स्टेमेन। कलेक्टिव नेम इनका है एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो हर एक स्टेमेन जो होता है इस ये बना होता है एंथर का और फिलामेंट का। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे हम एंथर, थोड़ा बल्ज्ड पोर्शन है ये है एंथर। और जो इसको ये सपोर्ट देता है स्टॉक जैसा नीचे से ऊपर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। यूजुअली जो एंथर्स होते हैं ये बाई लोब्ड होते हैं, ऐसे एक लोब ऐसे दो लोब, ये बाई लोब्ड होते हैं, बाई लोब्ड। यह है एंथर और नीचे जो है ये है फिलामेंट इसका। एंथर्स आर यूजुअली बाइलोब्ड और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक्स होते हैं। 4 सेक्स माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक्स होते हैं 4 इसके अंदर, एंथर के अंदर। या कभी कभी इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, कभी कभी एक ही लोब या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एक ही लोब जो पोजीशन है स्टेमेन की जो कनेक्ट करता है एंथर को फिलामेंट के साथ उसको कनेक्टिव बोलते हैं। यो पोर्शन जो है स्टेमेन का, जो स्टेमेन का पोर्शन है जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है एंथर को फिलामेंट के साथ, यहाँ एंथर और फिलामेंट कनेक्ट होता है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम। ये तीसरी वर्ल थी फ्लोरल अपेंडेजेस की कैरोला के अंदर से। जो हर एक अपेंडेज इसकी है स्टेमेन की वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करती है। इंडिविजुअल मेंबर्स को बोलते हैं हम जो इसका इंडिविजुअल मेंबर है उसको स्टेमेन बोलते हैं। उसका ऊपर हिस्सा लोब्ड होता है जिसको एंथर बोलते हैं। नीचे जो उसका स्टॉक जैसा होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है यूजुअली और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में एंथर में एक ही लोब होता है या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें एक लोब इसमें एक लोब, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसका पोर्शन एंथर का
स्टेमेन का वो पोर्शन जो एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करता है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। अब हम चौथे वर्ल अब हम फोर्थ वर्ल की तरफ जाएंगे। दिस इज़ द फोर्थ वर्ल, ये वाली, ये जिसको हम गाइनोशियम या पिस्टल कहते हैं। गाइनोशियम और पिस्टल, इट इज़ द फीमेल पार्ट, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फोर्थ वर्ल है। अगर हम ये यहाँ से काउंट करेंगे, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड, अब ये वाला जो है ये फोर्थ वर्ल है फ्लावर की, और इनर मोस्ट है ये वर्ल है। इसको कार्पेल भी कहते हैं। जो एक कार्पेल है वो लीफ, वो रिजेंबल करता है ए लीफ इन हैविंग 3 वास्कुलर ट्रेसेस। इसमें 3 वास्कुलर ट्रेसेस होते हैं। जो गाइनीशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, और इसके 3 डिस्टिंक्ट हिस्से होते हैं। जो नीचे वाला ये पोर्शन है थोड़ा सवोलन, ये वाला, इसको कहते हैं ओवरी। नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं ओवरी। बेसल पोर्शन सवोलन पार्ट ऑफ कार्पेल और गाइनेशियम। कार्पेल या इस गाइनेशियम का सवोलन पार्ट जो है, बल्जिड पार्ट जो है, उसको कहते हैं ओवरी। इसमें एक या बहुत से ओव्यूल्स होते हैं। इट बियर्स वन और मेनी ओव्यूल्स। अब स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा इसको बोलते हैं जो ऊपर वाला है, ये वाला ऐसे होता है, ये ऐसे होता है थोड़ा, ये पोर्शन जो है इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये इसका काम है, ये एक रिसेप्टिव सपोर्ट है जहाँ पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। जब ये अंतर से पोलन यहाँ आते हैं तो वो यहाँ लैंड करते हैं। इसको स्टिग्मा कहते हैं। अब स्टाइल जो है, स्टाइल जो है, ये कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, ये वाला जो यहाँ से ये पोर्शन है, ये वाला, इसको कहते हैं स्टाइल। इट इज़ ए कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा ये इस पोर्शन और इस ओवरी के दरमियान जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्टाइल। तो ये था फ्लावर के बारे में। अब हम टेक्सोनॉमिकली देखेंगे कि फ्लावर की कुछ डिस्क्रिप्शन है, टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी इस पर ओवरव्यू लेंगे, आप याद रखेंगे। टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। पेडिसल, स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर। अभी मैंने आपको दिखाया था पेडिसल, जो स्टॉक होता है फ्लावर का, स्टॉक, स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पेडिसल। अब पेडिसलेट टर्म जो है, ए फ्लावर हैविंग ए पेडिसल और स्टॉक, वो फ्लावर जिसका पेडिसल होगा या स्टॉक होगा, ऐसे फ्लावर को पेडिसलेट कहते हैं। सीसाइल, ए फ्लावर विदाउट ए पेडिसल, एक फ्लावर जिसमें पेडिसल नहीं होगा उसको सीसाइल कहते हैं। जैसे मैंने आपको लीफ में बोला था, कभी कभी लीफ का पीटियोल नहीं होता था, उसको सीसाइल बोलते हैं। यहाँ भी ऐसी ही टर्म है। कभी फ्लावर में ये स्टॉक या पेडिसल नहीं होता है, ऐसे फ्लावर को सीसाइल कहते हैं। स्टेमिनेट, ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ स्टेमेन्स, ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ स्टेमेन्स। हाँ, वो फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल होगा और वो मेल ही होगा, स्टेमेन मीन्स मेल पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर। दूसरा है पेस्टलेट, ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ कार्पेल्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कार्पेल्स ही होंगे, हाँ, ओवरी ही होंगे या फीमेल पार्ट ही होगा, दैट इज कॉल्ड पेस्टलेट फ्लावर। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्ल्स, वर्ल्स की बुनियाद पर
कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं? ए फ्लावर हैविंग ऑल द फोर वर्ल्स, जिसमें तमाम जो हमने अभी पढ़े चार वर्ल्स कैलेकस, कैरोला, एंड्रोशम एंड गाइनेशियम, ऐसे फ्लावर को कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, हिबिस्कस में ये चारों वर्ल्स होते हैं, ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं जिसमें चारों वर्ल्स मौजूद हों, दो एसेंशियल और दो नॉन एसेंशियल। इनकम्प्लीट फ्लावर, ए फ्लावर लेकिंग वन और मोर वर्ल्स, वो फ्लावर जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्ल्स कम होंगे, ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट टर्म ही इंडिकेट करता है कि वो इनकम्प्लीट है, उसमें कोई कमी है। लूफा फ्लावर है। हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट का दूसरा नाम है बाइसेक्चुअल या परफेक्ट। वो फ्लावर जिसमें बोथ मेल या स्टेमेन और फीमेल गाइनेशियम ऑर्गन्स होंगे, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? हर्मोफ्रोडाइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी हिबिस्कस का एग्जांपल दिया, ऐसे फ्लावर को हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्चुअल या परफेक्ट फ्लावर कह सकते हैं, या कंप्लीट भी कह सकते हैं ऐसे को। हिबिस्कस। अब यूनिसेक्सुअल को हम बोलेंगे फिर इनकम्प्लीट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट इज इम्परफेक्ट। यूनिसेक्सुअल और इम्परफेक्ट वो फ्लावर जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव वर्ल या मेल या फीमेल होगा, ऐसे को बोलते हैं इम्परफेक्ट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी स्टिमुलेट, अभी आपने पढ़ा, मेल फ्लावर विथ ओनली एंड्रोशियम और पिस्टिलेट, या फीमेल फ्लावर जिसका गाइनेशियम ही होगा। अब यहाँ दूसरी टर्म न्यूटर, न्यूटर वो होता है स्टेराइल फ्लावर विदाउट एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। वो स्टेराइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता है, जिसमें एंड्रोशियम भी नहीं होता है, गाइनेशियम भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल रे फ्लोरेटस ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में ऐसा होता है। ये आपने पढ़ा, ये है पिस्टल, ये है स्टेमेन, ये वाले हैं स्टेमेन, इसको गाइनोफोर कहते हैं, इसको बोलते हैं एंड्रोफोर। दीज आर सेपल्स, ये कुछ अलग सी डायग्राम है। दीज आर पेटल्स। फिर सेपल्स पेटल्स से एलिवेशन दिया है इसने फ्लोरल एसेंशियल वर्ल्स को, इसको बोलते हैं एंड्रोफोर, जिससे ये एसेंशियल वर्ल्स अराइज होती हैं, और इसको गाइनोफोर कहते हैं जिससे ये फीमेल पार्ट अराइज होता है। ये है थैलेमस, दीज आर सेपल्स, दीज आर पेटल्स। इसमें जो है थैलेमस है ये प्रोलॉन्ग्ड है। इंशाल्लाह कल हम फ्लोरल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे।